We are starting with circular motion, lecture number 2. Last time in lecture number 1 we had done some terms and definitions. Today we'll express the relations between linear quantities and angular quantities. I'll do 2 derivations today. सबसे पहला derivation is a relation between linear velocity v bar and angular velocity omega bar. इधर ध्यान देना. Relation between linear velocity and angular velocity. देखो, previous lecture में हमने आपको बताया था एक relation डेल्टा एस बार is delta theta bar cross r bar. We know it, that is S is equal to r theta. Beta, what is this termed as? Linear displacement. What is this termed as? Angular displacement. दोनों के बीच में रिलेशन हमने बना दिया r theta. तो आपको फिजिक्स के प्रीवियस नॉलेज को भूलने की जरूरत नहीं है. स्कूल में हमने किसके बारे में पढ़ा? एस के बारे में पढ़ा था. और अभी हमने 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में आके थीटा के बारे में पढ़ा. दोनों के बीच में हमने रिलेशन कनेक्ट कर दिया, दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा. लीनियर क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी, द ब्रिजिंग बिटवीन देम इज डन बाय आर. ये हमको पता है. Okay. Now I am going to express a relation between linear velocity and angular velocity. Linear velocity का definition क्या है? Rate of change of displacement. स्कूल से पढ़ा. Angular velocity, rate of change of angular displacement. दोनों के बीच में क्या relation? वो देखना है. So asked in the exam for 2 to 3 marks. V bar and omega bar के बीच में relation हमको निकालना है. For this circle, initially the particle is here. Can I say this is the radius vector r bar? This is the center O, and point P पर वो start में particle इधर है. Can I say this is time 0? When you start observing the particle. बराबर है. अच्छा, आपने इस इंस्टेंट पर पार्टिकल को देखा. Where is the particle tending to go at this instant? At this instant, where is the particle tending to go? It is tending to go linearly. At the next instant, it will bend. मैं नेक्स्ट इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही इंस्टेंट की बात कर रहा हूं. एट दिस इंस्टेंट वेयर इज द पार्टिकल टेंडिंग टू गो? स्ट्रेट. नेक्स्ट इंस्टेंट पर वो घूम जाएगा. मतलब अगर सपोज एट टाइम t, और आई कैन से डेल्टा t, इट कम्स टू q. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर बिकॉज द पोजीशन वेक्टर has changed. Can I say this is the direction of velocity vector at this instant? And the angle traced by the radius vector at the center of the circle is delta theta. बोलो, देख लो. Okay. 5 सेकेंड के लिए देखो, सोचो, ऐसे ही होगा. तो what is the direction of linear velocity? Tangential. At every moment it is tangential. आप जब पार्टिकल की तरफ नजर रख रहे हैं तो at every moment the particle is tending to go straight. उसको जाना तो straight था, कोई उसे straight नहीं जाने दे रहा है. वो कौन है हम पढ़ेंगे. उसको जाना तो सीधा था, मगर किसी ने उसको ऐसे मोड़ दिया.
फिर इस इंस्टेंट पर उसको जाना तो सीधा है, मगर नेक्स्ट इंस्टेंट पर किसने उसे मोड़ दिया। इस इंस्टेंट पर उसको जाना सीधा है, किसने मोड़ दिया। इसी का नाम तो सर्कुलर मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन। अगर वो सीधा सीधा चला जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर displacement, linear velocity. But at this instant the velocity over here is tangential, so the direction of linear velocity is tangential. What is the direction of r bar? Away from this. Along the radius, away from the center. Beta, what is the direction of omega bar? Omega bar, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड। अभी मैं यहाँ पर कुछ अच्छे टर्म्स दूंगा ताकि आप रिमेंबर कर सकें। कैन आई से आर बार का डायरेक्शन इज रेडियल, वी बार का डायरेक्शन इज टैंजेंशियल, ओमेगा बार का डायरेक्शन इज एक्सियल along the axis, axial, radial, tangential. इमेजिन अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ओके, ये क्या है बेटा, ये एक्सियल है, ये क्या है, नहीं ये टैंजेंशियल और ये रेडियल। देखिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, लुक, ये वेक्टर चेंज हो रहा है, v ऐसे चेंज होगा ना, r बार उसका ऐसे चेंज होगा अंदर की तरफ, बट ओमेगा बार जो है वो हमेशा ऊपर का ऊपर ही है। That's why in UCM we say that motion of the particle along the circumference of the circle with constant omega. Previous lecture में हमने आपको सिखाया था constant omega. Omega is constant because the direction is also not changing and the magnitude of omega is also not changing. V बार का डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, R बार का डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, ओमेगा ऊपर का ऊपर ही है। You got to think about the derivation. I'm starting with the derivation over here. Okay, इसके दो फॉर्म्स हैं, एक है स्केलर फॉर्म and one is the vector form. I'll prove the scalar then the vector. स्केलर फॉर्म S और R के बीच में रिलेशन क्या था बेटा, S is equal to R theta. S is equal to R theta. S क्या है, ये S है ना बेटा, इसको नाम देते हैं डेल्टा S बिकॉज सब छोटा क्वांटिटीज है ना, देखो ना, डेल्टा S, डेल्टा T, डेल्टा थीटा। एंड कैन आई से एवरीवन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा, S बढ़ता जाएगा, T भी बढ़ता जाएगा टाइम, तो एवरीवन ओवर हियर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। You getting it what's happening? अभी यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ, can I write this as delta S by delta T? क्या R चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? R चेंज ही हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, R is constant, तो R को will not write. Can I write this as delta theta by delta T? And यहाँ पर previous condition अगर आपको याद रहेगा तो I am writing limit delta T tends to 0. यहाँ पर भी हम लिखेंगे limit delta T tends to 0. R को हमने हाथ ही नहीं लिया, R चेंज ही नहीं हो रहा। Can anyone tell me what is delta theta bar by delta T limit delta T tends to 0? d theta by dt which is written as what beta, omega. ये जो टर्म है that becomes what beta, omega. So ये बन गया R omega। ये क्या बनेगा, delta S by delta T limit delta T tends to 0. Can I say this is displacement upon time? Rate of change of displacement with respect to time is what beta, velocity. V is equal to R omega. जैसे S is R theta वैसे V is R omega. V is linear velocity, R is radius, omega is angular. So I have got a relation between V and R, and who is the connecting factor? R. V का नाम क्या है, दूसरा नाम है tangential velocity. linear velocity लिखा है, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे tangential velocity. R का नाम is radius vector, omega is angular velocity.
The direction of him is tangential. The direction of him is radial. The direction of him is axial. Getting it? It is like this. Axial omega, anti-clockwise ऊपर, clockwise नीचे. Tangential and radial. Everywhere when the particle is moving, it will move this way. Vectors will change. अभी हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म करते हैं. बात सुनो. इसका वेक्टर फॉर्म क्या था? डेल्टा एस बार is delta theta bar cross r bar. It is not r cross theta because a cross b is not b cross a. Confused मत हो. Can I change this with respect to time and limit delta t tends to 0? So delta s bar by delta t. Limit delta t tends to 0. Delta theta bar by delta t. Limit delta t tends to 0 and r bar का r bar वही रखेंगे हम लोग. ये क्या बन जाएगा बेटा? v bar. ये क्या बन जाएगा बेटा? ओमेगा बार. and ये क्या बन जाएगा बेटा? r bar. v bar is omega bar cross r bar is the vector form. v bar is omega bar cross r bar. Are you all understanding what's happening? अभी हम इसका डायरेक्शन इन द डायग्राम देखेंगे. देखो उधर. सपोज ये पार्टिकल है. पार्टिकल ऐसे जा रहा है. सपोज पार्टिकल इधर था, तो what will be the direction of radius vector? Radius vector from the center will be this way. ये r bar. बोलो. Radial along the radius away from the center. ये है v bar. Tangential है, horizontal circle है. And where is omega bar? ऊपर. देख लो. Axial, radial, tangential. What is the angle between omega bar and r bar? What is the angle between v bar and r bar? 90. So A is perpendicular B, perpendicular C, A is perpendicular to C. समझ में आ रही है बात? मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ओमेगा और आर के बीच में कितना एंगल है? ओमेगा और आर के बीच में कितना एंगल है? एंड यू नो ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में. वी विल बिकम ओमेगा आर साइन थीटा. बट हाउ मच इज द थीटा बिटवीन देम? सो वी विल बिकम व्हाट बेटा? आर ओमेगा. प्रूव्ड. नहीं, इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली. ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? So angle between omega bar, v bar and r bar is 90. I can say they are mutually perpendicular to one another. V bar is tangential, r bar is radial, omega bar is axial. Anti-clockwise upward, clockwise downward. Everyone is understanding this? Clear हो गया ये चीज? Next discussion which I'm going to ask you is uniform circular motion an accelerated motion? ये क्वेश्चन का आंसर जब मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़. Can anyone tell me? कोई बता सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, जिसका ओमेगा भी कांस्टेंट हो, जिसका वी भी कांस्टेंट. इसका मतलब क्या? सपोज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, हर पॉइंट पर वी मालूम है ना बेटा? टेंजेंशियल. हर मोमेंट पर वी सेम है. ध्यान देना बेटा. हमने आपको लास्ट टाइम बताया था यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट होता है.
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? ओमेगा. मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, बिकॉज इट इज मेकिंग कांस्टेंट एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ना. तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है देन v इज आर ओमेगा ना, अभी प्रूफ किया ना. तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है. ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं समझा के एकदम. नाउ यू आंसर मी, इज UCM an accelerated motion? Yes. Is uniform circular motion an accelerated motion? There is no change in speed. Is it an accelerated motion? Yes. Yes. Who is telling us? Give me the answer, please. Yes, tell me. Because the velocity continuously changes with change in direction. Change in direction. Acceleration का मतलब होता है, सुनिए बात होता है. Acceleration का मतलब होता है change in velocity vector with respect to time. Velocity vector जो होता है that is having two things, magnitude and direction. Pay attention over here. तो या तो magnitude change हो with respect to time, it will give rise to acceleration. या तो डायरेक्शन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल गिव राइज टू एक्सेलरेशन. या तो दोनों चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल गिव राइज टू एक्सेलरेशन. यहां पर स्पेसिफिकली क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है. हर जगह इट इज गोइंग विद 2 मीटर पर सेकंड. सपोज v मीटर पर सेकंड, v everywhere it is v, but the direction is continuously changing. That means there is some physical quantity which is changing the direction of motion, and changing the direction of velocity is called as acceleration. This acceleration is a very special acceleration. Without this, circular motion is not possible. अगर एक्सेलरेशन ये काम नहीं करेगा तो डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगा. तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कल में जाएगा ही कैसे? तो सीधा चला जाएगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? देखो यहां पर फिर से एक स्लो मोशन में जाते हैं. क्या चेंज होगा बेटा? वेलोसिटी में कौन से कंपोनेंट्स है चेंज होने के लिए? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ. तो one person is playing the role of changing the magnitude. जब हम फैन का स्पीड कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है ना, जो उसके स्पीड अप करता है या उसको स्पीड डाउन कर देता है. That acceleration is acting individually. इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने इसको काम दिया, तुम आज से सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन चेंज में हेल्प करेंगे. मतलब he is going to change the direction of motion always. इसको मैंने काम दिया, you are responsible to change the magnitude of velocity. तो इसका काम क्या है? डायरेक्शन के चेंज का ध्यान रखना. इसका काम क्या है? मैग्नीट्यूड के चेंज का ध्यान रखना. दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? हाँ बोलो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है दोनों में से? क्योंकि बिना इसके डायरेक्शन जी चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ये कब आएगा? जब स्पीड आप बढ़ा रहे हो या स्पीड आप कम कर रहे हो. अदरवाइज ही इज नॉट एक्टिव. इन सर्कुलर मोशन the acceleration which is responsible to change the direction has always to be active. ये अगर डीएक्टिव हो गया तो पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा. आपको समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? ये एक्सेलरेशन क्या काम करेगा? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इधर है, चलो इधर मुड़ जाओ. इधर है, इधर मुड़ जाओ. इधर है, इधर मुड़ जाओ. इधर है, इधर मुड़ जाओ. So he always has to be active. हमको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं. एक
who is the one who is responsible in changing the direction of motion, other who is responsible in changing the magnitude of motion. One is responsible in changing the direction of motion, other is responsible in changing the magnitude of motion. And the most important thing is the first one who is responsible in changing the direction of motion. Because बिना direction change करने के circular motion होगा ही नहीं. Got it? So is UCM an accelerated motion? Yes, it is an accelerated motion because there is change in direction of motion. समझ में आ रही है? यहाँ पर दो टाइप के acceleration है, फिर से मैं बता रहा हूँ. Answer. So answer will be yes. It is an accelerated motion because there is change in direction of velocity vector. That acceleration which is responsible in change in direction of motion is termed as centripetal acceleration. बात सुनना है इधर? इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है. इतना इंपॉर्टेंट है. मतलब ये अगर डीएक्टिव हो जाए तो पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा and it will move where it will move tangentially to that instant. मतलब अगर इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डीएक्टिव हो गया तो पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा, वो सीधा चला जाएगा. अगर इस मोमेंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम जीरो, सर्कल ऐसे चला जाएगा पार्टिकल. जिसी भी मोमेंट पर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल जीरो हो गया, उस मोमेंट पर वो सर्कल छोड़ देगा. Are you understanding? सबसे important. So now we are going to derive an expression for centripetal acceleration. उसका direction देखेंगे, उसका magnitude देखेंगे, और काम क्या करता है ये? Changes the. He is the hero of our story. इसके बिना चैप्टर ही पॉसिबल नहीं. अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी वेक्टर सर्कुलर मोशन होगा. अच्छा, मैं आपको दो कंडीशन देता हूँ, थोड़ा और बात करते हैं 2 मिनट. यूसीएम, नॉन यूसीएम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? ओमेगा इज कांस्टेंट, वी इज कांस्टेंट, वी इज कांस्टेंट, वी 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 एवरीवेयर. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? V1, V2, V3, V4, V5, V6. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस टाइप के सर्कुलर मोशन में है? यूसीएम में है कि नॉन यूसीएम में? दोनों में है भाई. डायरेक्शन तो दोनों में चेंज हो रहा है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिव in both the circular motions, whether it is UCM or whether it is non-UCM. मगर सेकेंड वाला जो एक्सेलरेशन है, जो मैग्नीट्यूड को चेंज करवाता है, वो इधर एब्सेंट है फर्स्ट में. Because there is no change in V, no, over here. V. So how much is the change in V? 0. मतलब सब जगह वो 2 से जा रहा है. 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2. तो इधर सेकेंड वाला एक्सेलरेशन डीएक्टिव है. He is not playing the role. यहाँ पे कितने नॉन यूसीएम में कितने एक्सेलरेशन एक्टिव है? One is responsible to change the direction of motion, other is responsible to change the magnitude of motion. कोई मल्टीटास्किंग नहीं करता है नेचर में. एक को रोल दिया जाता है, भाई तुम ध्यान रखेंगे डायरेक्शन का, तुम ध्यान रखेंगे मैग्नीट्यूड. No one person will play 2 roles. You understanding what's happening? He different role, he different role. Play it. You will be responsible, and you will be responsible for change in magnitude. You getting it? What's happening? So I think it is very much clear that the role of centripetal acceleration is to change the direction of motion, that is velocity vector. Starting with the derivation of centripetal acceleration. Changes the direction of motion, that is direction of V bar. ये इसका काम है.
इसका क्या फॉर्मूला है और क्या डायरेक्शन है वो हम देखते हैं, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना बेटा। कैसे लिखेंगे इसको? ए बार से। मैग्नीट्यूड भी है उसके पास, डायरेक्शन भी है। उसका काम क्या है? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरो ऑफ आवर स्टोरी, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिना इसके सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। कंसिडर अ सर्कल लोकेटेड ऑन द XY प्लेन। हमको पता है कि जो सर्कुलर मोशन है दैट इज द 2D मोशन। 2D मोशन हमने 11th स्टैंडर्ड में और एक पढ़ा था, दैट वाज प्रोजेक्टाइल मोशन। 1D मोशन या तो x में, या तो y में, या तो z में। 2D मोशन x1 y1 x2 y2 चेंज होगा हर मोमेंट पर। 3D मोशन तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे x y z व्हिच इज ट्रैवलिंग इन स्पेस। ओके, तो बी फ्लाइंग दैट इज 3D मोशन। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों चेंज होगा। यहाँ पर हम लोग दो कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x एंड y। सो ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर पार्टिकल इनिशियली इधर है p पर। कैन आई से दिस इज टाइम 0? ध्यान दो इधर। कैन आई से दिस इज द रेडियस वेक्टर r bar at this instant, position vector of the particle at this instant. Where is the direction of linear velocity at this instant? Tangential. Very good. थोड़े टाइम के बाद में पार्टिकल इधर आ गया। Can I say टाइम t पर पार्टिकल इधर आ गया, q पर this will be the radius vector, position vector यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, indicating particle इधर है, this is r bar now. Can I say this is the angle traced at the radius vector at the center of the circle? Can I say this is theta? And this will be the direction of the velocity vector, that is v bar. Are you understanding? Clear है? अच्छा, it is going with UCM. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है इट इज गोइंग विद कांस्टेंट ओमेगा। ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, याद है? थीटा और ओमेगा इज थीटा बाय टी। What is angular velocity defined as? Rate of change of angular displacement with respect to time. So in time t, बेटा थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। अरे भाई 1 सेकंड में थीटा कितना हो जाएगा? 1 ओमेगा। 2 सेकंड में, 10 सेकंड में 10 ओमेगा। सो टी सेकंड्स में ओमेगा टी। देखो ना फॉर्मूला के हिसाब से समझ में आ रही है बात? अभी हमने क्या किया? अभी हमने पार्टिकल ऐसे जा रहा था, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, इधर 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 ऐसे 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 जा रहा है। हमने इस इंस्टेंट पर इसका फोटोग्राफ खींच लिया, इसका पिक ले लिया, स्नैपशॉट ले लिया। ओके, 0 से लेके t तक जब पार्टिकल t पर आ गया तो मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया। अब पार्टिकल कहाँ है हमारे फोटोग्राफ में? t पर। The position of the particle at this instant is right now at q. बराबर है? अभी ये जो r बार है इसको मैं 2 पार्ट में रिजॉल्व करूंगा, ध्यान देना। अभी Can I resolve this r radius vector into 2 parts? Can I name this as m and can I name this as n? Because this is the position of the particle at this instant. ये r bar को जाने देते हैं अभी। Can I say this is the position vector of the particle at this instant? Can I say this r bar can be split into 2 components, one along the x axis and other along the y axis. इसको हम कहते हैं resolution of vectors. नाम technically. So this component OM को हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? Can I write this as r cos theta, which can also be written as r cos omega t? But theta is omega t ना भाई?
तो x कंपोनेंट हमारा कौन सा हो गया, r cos ओमेगा t, और y कंपोनेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये r है, ये r cos थीटा है, तो ये कौन सा रहेगा बेटा, r sin थीटा, which can also be written as what, r sin omega t. So this whole component is r sin omega t. Clear? एक चीज हमने नोट की, I am expressing everything in as a function of time. x कंपोनेंट का मैंने बना दिया r cos ओमेगा t. क्यों? क्योंकि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये कंपोनेंट चेंज होते जा रहे हैं. अरे समझ में आ रही है बात? और जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे ये कंपोनेंट भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि r बार चेंज होता जा रहा है. थोड़ा और टेक्निकली डेप्थ में सोचने जाएंगे तो r बार का डायरेक्शन हर मोमेंट पर चेंज हो रहा है, तो उसके कंपोनेंट्स भी हर मोमेंट पर चेंज होंगे. इस इंस्टेंट पर जब हमने स्नैपशॉट लिया, ये r cos ओमेगा t और ये r sin ओमेगा t, बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा, who is changing with respect to time? Can anyone tell me, is r bar changing with respect to time? Yes. देखो भाई, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है और हम लोग यहाँ पर प्ले कर रहे हैं डायरेक्शन चेंज से. मैग्नीट्यूड चेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो नॉन यूसीएम में करेंगे. हम लोग यूसीएम की बात कर रहे हैं. डायरेक्शन आर बार का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायरेक्शन थीटा का भी, थीटा का सेम है. डायरेक्शन ओमेगा का भी सेम है. डायरेक्शन वी का चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? वी बार का चेंज हो रहा है. तो एक तो डायरेक्शन आर बार का चेंज हो रहा है, आर बार इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ, so there is change in r bar and there is change in v bar. ये दोनों चीज से खेलना है बस, और कुछ नहीं करना. I am starting with the derivation. ये क्लियर हो गया आपके सामने? Now listen up. Can anyone tell me what is the position vector of particle at q? क्योंकि स्नैपशॉट हमने q पर लिया, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा at q? r बार. r बार को मैं लिख सकता हूं बेटा x I कैप प्लस y j कैप. अरे एक वेक्टर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा, अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस. x कंपोनेंट का क्या नाम था? r cos ओमेगा t. y कंपोनेंट का क्या नाम है? r sin ओमेगा t. एंड I कैप j कैप इंडिकेट्स यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x एंड द y एक्सिस. सो यहां पर हम लिखेंगे r बार, इसको लिख सकते हैं बेटा r cos ओमेगा t I कैप प्लस r sin ओमेगा t j कैप. क्लियर है? This is r bar. This is equation number 1. ध्यान देना बराबर से. अच्छा, ये r का क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? r चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? हाँ, चेंज हो रहा है. So can I say direction of r bar changes with respect to time, therefore differentiate r bar with respect to time? I am using method of calculus, derivatives, differentiation. ये change हो रहा है ना, so can I differentiate this, change this with respect to time because it is a function of time? बोलो ना आंसर. So differentiation कब यूज होगा? जब चीजें change हो गई with respect to time. So I am differentiating this whole thing with respect to time. इधर ध्यान देना. Can I write this as dr bar by dt? r constant है ना बेटा? Derivative of cos omega t I cap प्लस इसका r constant है. Derivative of what? Sin omega t j cap. बोलो, समझ में आ रहा है? मैथ्स आना चाहिए इसके लिए. Now wait, मैं यहाँ पर साइड पे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ sin omega t
is cos omega t into derivative of omega t, that is omega. तो ये क्या बन जाएगा पूरा ओमेगा cos omega t. Hey, this is composite function chain rule. अंदर 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 जाके डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव ऑफ sin omega t is cos omega t into derivative of omega t, that is omega. जिसको मैथ्स नहीं आता है सीधा ये रिजल्ट याद करो, because you will get stuck up in the 4 marks derivation otherwise. Similarly, d by dt of cos omega t is minus sin omega t into derivative of अंदर वाला, that is omega t, that is omega. तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. Getting it? ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपको याद करना, चाहे आपको मैथ्स आए नहीं आए, डेरिवेशन आना चाहिए. So what is derivative of sin omega t? Omega cos omega t. What is derivative of cos omega t? Minus omega sin omega t. बस इतना याद. So whenever that kind of derivative comes, I'll just put the answers. बराबर है ना भाई, ध्यान देना अभी. So R is R. Derivative of cos omega t क्या लिखूंगा बेटा, माइनस ओमेगा sin omega t, I cap का I cap. R is R. Derivative of sin omega t बेटा क्या लिखूंगा, ओमेगा cos omega t, J cap. And what is dr bar by dt? Rate of change of radius vector with respect to time. रेडियस वेक्टर क्या है बेटा, रेडियस वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ ना with respect, what is the rate of change of displacement vector with respect to time? What is the rate of change of displacement with respect to time? Velocity. So this dr bar by dt results in b bar. देख लो, सोच लो, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन इधर था, टाइम t पर इधर आ गया. अरे भाई इधर से इधर कैसे आया, चल कर गया ना उधर, मतलब उसके पास क्या था, वेलोसिटी था. एकदम लॉजिकल बात है भाई. आर बार का डायरेक्शन चेंज हुआ, अपने आप तो चेंज नहीं होगा. आर बार इधर था, इधर से इधर आ गया, इसका मतलब आर बार का डायरेक्शन चेंज हुआ. आर बार का डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब पार्टिकल चलेगा ना यहाँ पर, मतलब द पार्टिकल इज हैविंग व्हाट, वेलोसिटी, देन ओनली द डायरेक्शन ऑफ आर बार विल चेंज. एंड देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ आर बार, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार. वरना सर्कल कहलाएगा ही नहीं ना भाई, आर इसका चेंज होगा 1 मीटर 2 मीटर तो बड़ा हो गया ना भाई. तो हर एक मोमेंट पर आपको सोचना है. इधर ये वी बार मिला हमको, वी बार ये मिला. कैन आई नेम दिस एज इक्वेशन? ओके, इसको थोड़ा बराबर करते हैं. कैन आई से वी बार विल बिकम माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा आर cos omega t j cap. Yes sir, this is equation number 2. बोलो. बट हमारे डेरिवेशन का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वी बार. क्या वी बार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हो रहा है. वी बार इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि he is also changing with respect to time ना. Since he changes with respect to time, differentiate this equation also with respect to time. So वही चीज लिखना है, डायरेक्शन ऑफ v bar changes with respect to time, therefore differentiate v bar with respect to time. इसका डिफरेंशिएशन हम लेंगे, इधर ध्यान देना सब लोग. ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी, इधर ध्यान देना. dv bar by dt, इसका डेरिवेटिव with respect to time, derivative of velocity with respect to time becomes what, acceleration. So मैं डायरेक्टली a बार लिख रहा हूं. माइनस ओमेगा आर कांस्टेंट है, इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है. डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी is what, pick up from here, omega cos omega t. So this is what, omega cos omega t I cap
प्लस ओमेगा आर बाहर निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव निकालना है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नथिंग इट इज, दो बार डेरिवेटिव लिया मैंने। अभी इसको बराबर करते हैं हम लोग थोड़ा। ए बार इज माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर। तो कैन आई टेक माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन? यू टेल मी सर आर भी कॉमन है। देखो अगर आर को कॉमन मत लेना, ये मिस्टेक करेंगे फिर ढूंढते रहेंगे। आर को कॉमन नहीं लेना है। माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में? आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जे कैप लिखना है यहाँ पर एकदम ध्यान से। आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप इज आर बार। देखो ना, सो ए बार क्या मिला मैंने? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। बोलो, ये हमारा डेरिवेशन है, फॉर्मूला है फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका काम क्या है? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अभी इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में हम लोग डाइसेक्ट करेंगे कि क्या है ये सब चीज। देखो डेरिवेशन बहुत इजी है, दो बार डेरिवेटिव लेना है और कुछ नहीं करना है। इफ यू नो मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल फॉर यू। ये इक्वेशन लिखना है मेरे को। एक बार डेरिवेटिव लिया तो v मिला, दूसरी बार डेरिवेटिव लिया तो क्या मिला? a मिला, और उसके अंदर r डाल दो तो a बार विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर r बार। तो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं हम लोग, थोड़ा सोचते हैं। a बार इज माइनस ओमेगा स्क्वायर r बार। ये इक्वेशन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a बार? जोर से बोलो। Opposite to the direction of radius vector. Opposite to the direction of radius vector. How did you come to know that? The minus. Minus sign. What is the direction of radius vector? Away from the center. Along the radius, away from the center. So this direction will be along the radius towards the center. Okay. The direction of a bar is along the radius towards the center. अभी हम इसको बात करेंगे इसके बारे में, ये खत्म नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूले के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इधर देखो v बार ऐसे था, v बार ऐसे था। जब वो इधर आया तो वो इधर से इधर मुड़ गया। जब वो इधर जाएगा तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे नहीं लग रहा है कि किसी ने इसको ऐसे धक्का मारा है अंदर की तरफ? अरे भाई उसको जाना तो सीधा था। I want to go straight. No, no, no. You are not allowed to go straight. Bend inside. इधर जाना है मुझे, नहीं जाने दूंगा, इधर जाओ। इधर जाना है मुझे at this instant, नहीं जाने दूंगा, इधर जाओ। So there is someone who is pulling him towards the center. देखो ना भाई, इधर जाना था, मुड़ गया ऐसे। इधर जाना था, अंदर मुड़ गया। इधर जाना है, अंदर मुड़ गया। That work is done by the component of centripetal acceleration. वो मोड़ने का काम centripetal acceleration करेगा। And किस तरफ मोड़ेगा? ऐसे नहीं लग रहा है कोई खींच रहा है उसको। हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो मेन बिहाइंड द सीन है, कल्प्रिट, जिसने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बनाया। ये फोर्स ही एक्सेलरेशन बनाता है ना भाई। F is ma, पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, F is ma। तो A जहां पर है वहां पर F होना जरूरी है। क्या कह रहा हूं? A जहां पर है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स होना जरूरी है। तो वो F के बारे में हम लोग फ्राइडे को बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग A के बारे में बात करेंगे।
मेन हीरो राइट नाउ इज ACP। क्या काम है उसका? मोड़ना। सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सीकिंग द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। मुड़ जाओ। अगर आप नहीं मुड़ेंगे तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, तो आपको मुड़ना तो जरूरी है भाई। Getting it? No, it's clear, I think so. So direction of A bar is along the radius towards the center. इसको मैं और एक मेथड से एक्सप्लेन करूंगा थोड़े टाइम बाद। This method is termed as calculus method. There is another method called as geometrical method, but majority we follow the calculus method. एकदम easy method है, आपको 4 मार्क ऐसे ही मिलता है, 2 बार डेरिवेटिव लो आंसर मिल जाता है। ओके बेटा, अभी इसके फॉर्मूलास के बारे में बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है is, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कोई बता सकता है? is, मैं यहां पर लिखता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा a is बेटा ओमेगा स्क्वायर r, माइनस माइनस r बार सब निकाल देते हैं, स्केलर फॉर्म। क्या इसे v is r ओमेगा, इसमें डालेंगे हम लोग ओमेगा is v बार v is r ओमेगा ना बेटा, तो ओमेगा is v बार। तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या इसे v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इनटू r, तो क्या बना बेटा v स्क्वायर बाय r। और तीसरा फॉर्मूला कैन आई राइट दिस एज ओमेगा स्क्वायर, r की जगह मैं लिख सकता हूं v बाय ओमेगा। अरे v is r ओमेगा, सो r will become v by ओमेगा। सो a का फॉर्मूला क्या बना जल्दी बताओ? ओमेगा v। तो हमको 3 फॉर्मूलाज आए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, आपको 3 फॉर्मूलाज आए। सबसे पहला फॉर्मूला बताइए, ओमेगा स्क्वायर r, v स्क्वायर बाय r, ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको ACP भी लिखते हैं। is omega square r v square by r omega v, omega square r v square by r omega v, omega square r v square by r omega v, omega square r v square by r omega v। direction is along the radius towards the center, along the radius, and काम क्या है? changes the direction of velocity vector। वो मार्क्स डेरिवेशन समझ में आ रही बात? ओके, पूरा चैप्टर डेरिवेशन से बना, पूरा चैप्टर। आज हमने 2 डेरिवेशंस किए, एवरी टाइम वी विल बी डूइंग 2 डेरिवेशंस। पूरा पोर्शन अभी पेपर 1 ऐसे ही चलेगा बस। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट्स, यू विल नॉट बी एबल क्लियरली अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग इसके थोड़ा ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करते हैं। इसमें ही मैं आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकल मेथड बता रहा हूँ कैसे होगा। ध्यान देना, ये डायग्राम में we will be doing the geometrical method, then some differences। इशाद है, इधर ध्यान दो, इधर देखो बेटा। इमेजिन पहले वो V1 था, क्या था? V1 बार, मैग्नीट्यूड V है, मैग्नीट्यूड V है, मगर मैंने क्या लिया बेटा? V1 बार। इमेजिन यहां पर क्या हो जाएगा? V2 बार। ध्यान दो, तो टाइम 0 पर था V1 बार, टाइम t पर कितना हो गया बेटा? मैं इसका एक वेक्टर ट्राइंगल बनाता हूं। वेक्टर ट्राइंगल का मतलब इसको उठा के इधर कैरी फॉरवर्ड कर दो, है ना यार? तो ये चीज को उठा के आई पुट इट हियर। ओके बेटा, तो ये क्या मिला? समझ में आ रही है बात? क्या ट्राइंगल में कंप्लीट कर सकता हूं? ये हमको करना नहीं है, ज्योमेट्रिकल मेथड का थोड़ा सी पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। वी आर गोना रेफर कैलकुलस मेथड ओनली। ये V1 बार है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया, V2 बार ऐसे हो गया। कैन आई से, कैन आई कंप्लीट द थर्ड साइड एंड द थर्ड साइड विल बिकम दिस वे? बोलो, थर्ड साइड विल बिकम दिस वे। कैन आई से, इसको नाम मैं देता हूं डेल्टा V बार। क्या नाम देता हूं? सर आपने डेल्टा V बार क्यों नाम दिया? कैन एनीवन टेल मी व्हाट प्लस व्हाट इज व्हाट इन द ट्रायंगल? V1 plus delta V is V2. So what will be delta V? V2 minus V1, इसके लिए डेल्टा V नाम दिया। नहीं समझ में नहीं आ रहा।
सो डेल्टा वी जो रहेगा यहां पर वो रहेगा v2 बार माइनस v1 बार, एंड इसको करने के लिए कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टर्म्ड एज व्हाट? मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसी तरफ है, एंड दिस डायरेक्शन इज व्हाट? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इसने क्या कहा? इसको इसने मोड़ दिया इस डायरेक्शन में कि भाई इधर जा रहे थे आप टाइम जीरो पर, अब आपको इधर जाना है, तो किसने उसको इस तरफ मोड़ दिया? तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एंड चेंज इन वेलोसिटी को कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा? सो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? एक्सेलरेशन। एंड अगर ये ट्रायंगल आप छोटा करते जाएंगे डेल्टा टी विल अप्रोक्सीमेटली बिकम इक्वल टू व्हाट? 0। छोटा करते जाएंगे तो ये डायरेक्शन जो आएगा स्पेसिफिकली अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। देखो अभी बराबर नहीं आ रहा है, देखो ये सेंट्रल नहीं है ना, मगर ये ट्रायंगल जब छोटा होते जाएगा व्हेन द डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ट्रायंगल छोटा हो जाएगा। मतलब मैं सिर्फ नेक्स्ट इंस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ट्रायंगल छोटा हो गया तो अपने आप ये डायरेक्शन सेंटर की तरफ आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। आज हम लोग लास्टली डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में पुट करेंगे ताकि आपको समझ आए क्या होगा यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। सबसे पहला यूसीएम, बताओ यूसीएम का डेफिनेशन क्या है? मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle with uniform speed, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ओमेगा इज कांस्टेंट? ओमेगा इज कांस्टेंट। अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा बार इज कांस्टेंट। क्या ओमेगा इज कांस्टेंट? सोच के बताओ। क्या ओमेगा बार इज कांस्टेंट लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं भाई। ओमेगा बार का डायरेक्शन क्या होगा? एक्सियल। तो भाई पार्टिकल ऐसे जाए तो एक्सियल ही रहेगा हमेशा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओमेगा बार इज कांस्टेंट, लिखा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? ओमेगा बार इज नॉट कांस्टेंट। ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो कभी था एंटी क्लॉकवाइज, फिर हो गया क्लॉकवाइज। सो मोड़ने के लिए भी एक्सेलरेशन तो आपको चाहिए ही ना। एक पार्टिकल ऐसे सीधा जा रहा था, बाद में मुड़ गया, पीछे आ गया, तो भाई आपने रिटार्ड किया तो ही तो पीछे आया। नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, you know v is r omega. If omega is constant, v will also remain. मतलब हर मोमेंट पर वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। तब अगर यहाँ पर हम देखने जाए सिनेरियो, तो अगर v यहाँ पर है तो v यहाँ पर है तो v यहाँ पर है, तो एवरीवेयर v is going to remain the same. यहाँ पर क्या कहेंगे? v is r omega is not constant, मतलब v या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ v1, v2, 3, 4, हर मोमेंट पर v चेंज हो रहा है। यार v बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव अल्फा होगा, घट रहा है तो नेगेटिव अल्फा होगा। वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। थर्ड, अब अल्फा के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? अल्फा के बारे में, अल्फा is a d omega by dt, but omega is constant. Derivative of a constant is what? 0. So alpha, there is no angular acceleration. Because angular acceleration का काम क्या रहता है? Change in omega. और ओमेगा तो कांस्टेंट है ना भाई। हर एक का नाम और काम याद रखना है, वरना समझेगा नहीं। अच्छा यहाँ पर बताइए, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। सिंस ओमेगा इज वेरिएबल,
alpha will also be variable and alpha will not be 0. अरे बोलो, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है ओमेगा का तो ये प्लस है, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है ओमेगा का तो ये माइनस है, बट काम तो करेगा ही। और हमको डायरेक्शन मालूम है ना, अगर बढ़ रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा विल बी देयर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर कम हो रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा विल बी देयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन दैट थिंग। फोर्थ, सुनो बात इधर, तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। हम बात करते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन जिसके फॉर्मूलाज थे ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा वी, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। एंड डायरेक्शन क्या रहता है बेटा इसका, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये इधर रहेगा? यस रहेगा, ऑलवेज। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा बिकॉज दैट एक्टिंग इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द ACP। ये ऐसे है, फिर पार्टिकल इधर आ गया V से, तो ACP इधर है, ऐसे हो, पार्टिकल इधर है V से, तो ACP ऐसे है। हमेशा A एक्ट करेगा एंड ये A का काम क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर। बिना इसके पार्टिकल का क्या होगा? बिना इसके पार्टिकल का क्या होगा? It will pass off tangentially। जिस डायरेक्शन, जिस मोमेंट पर सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन चला गया उस मोमेंट पर he will fly tangentially। तो क्या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन यूसीएम में है? हाँ है, is active, always active। क्या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इधर है? पक्का? क्यों? भाई इधर भी तो सर्कुलर मोशन ही हो रहा है ना, इधर तो दो काम हो रहा है। पहला काम चेंज इन मैग्नीट्यूड, दूसरा काम ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल। मतलब ये ऐसे काम तो करेगा ही ना, सेंट्रीपीटल यार, सेंट्रीपीटल यार, इधर भी काम करेगा सेंट्री, ये सब ए है ना, एक्टिव है। ये दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड कौन चेंज करवाता है। मैग्नीट्यूड चेंज करवाने वाला एक्सेलरेशन दूसरा होता है अदर देन सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल सब काम नहीं करेगा, सेंट्रीपीटल बोलेगा सिर्फ मुझे एक ही काम है, चेंजेस द मैग्नीट्यूड चेंज करवाने वाला कोई दूसरा है। फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड किसने चेंज करवाया, वो कहां पर रहेगा, पहले से बता दो। इधर मैग्नीट्यूड चेंज करवाने वाला एक्सेलरेशन नहीं है, डीएक्टिव है वो। इधर मैग्नीट्यूड चेंज करवाने वाला एक्सेलरेशन है। सो यहाँ पर कितने एक्सेलरेशंस हैं? 2। और यहाँ पे कितने एक्सेलरेशंस हैं? सिर्फ 1।